Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, my students. Before watching my video, make sure that you have pressed the bell icon and subscribed to my channel Nida's Literature. In today's video, we are going to discuss about the reading within the environmentalist, innatist and interactionist approach. Plus the framework of the communicative competence that is related to this specific approach, reading, specific skill reading. So let's start the topic. Reading within the environmentalist approach. Here is the brief history of the environmentalist approach that is related to this, that is under this specific skill. Up to the end of 1960s, the field was dominated by the environmentalist ideas concerned with the observable factors, and in which modeling and practicing were paramount. Okay, so modeling and practicing the correct structures time after time were more important. Reading was viewed as a passive process, and readers were viewed as the decoders, which means they decode the syntax and sentence structures of the रीडर जो है वो सेंटेंसेस को डिकोड कर पाता है, एंड फ्रॉम दिस ही कैन एक्सट्रैक्ट द मीनिंग. इट फॉलोज द सीक्वेंस दैट सिंबल टू साउंड्स, ही ट्रांसलेट द सिंबल इनटू साउंड एंड देन इट एक्सट्रैक्ट द मीनिंग. Comprehension is an abstract process. Under this approach, comprehension of reading is an abstract process, abstract operation, which was not easy to handle. Okay, so early reading research focused on the nature of perception also, यानी कि रीडर के लिए जो है उसका मीनिंग क्या है, नेचर ऑफ परसेप्शन पर ये ज़्यादा जो है फोकस्ड है. स्टिमुलस जिसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की भी जो है डेफिनेशंस को चेंज कर दिया गया है. रिस्पॉन्सेज, स्टिमुलस आर कंसीडर्ड एज वर्ड एंड रिस्पॉन्सेज आर कंसीडर्ड एज द रिकग्निशन ऑफ दोज वर्ड्स. ओके, in language programs, the reading is tackled as the comprehension as the development of decoding skills, यानी कि थोड़ी teaching methodologies हैं. Teaching to discriminate error was prevented. Reading methods relied on phonic method, sounding out and look out and say method. In under the environmentalist approach, यानी कि through the observation, through imitation and modeling and practicing पर ज़्यादा focus किया गया. Modeling and practicing यानी कि देख कर जो है उसको sounding out, यानी in an allowed sense you imitate the word, and look and say method is after watching that word you say that word in a louder voice. Okay, so these are the teaching methodologies. Reading within the innatist approach is the second one approach. By the mid-1960s, here is the brief history, cognitive processes began to get more attention. Okay, environmentalist approach में तो cognitive processes की बात नहीं की गई थी, लेकिन under this approach cognitive processes, mentalistic, innatist abilities की बात की गई है. In that how innatist would work in studying the acquisition of reading. Okay, so this research came from the work of psycholinguistics, जो कि साइकोलिंग्विस्टिक्स में अब जो मौजूद हैं. गुडमैन एंड स्मिथ वर द टू पर्सन. गुडमैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ एरर्स इन द रीडिंग प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट विदाउट एंड ही सेड दैट इट इज़ टू फोल्ड, कॉन्टेक्स्ट एंड विदाउट. कॉन्टेक्स्ट पर बात की जाए तो इसका मतलब है कि विद इन द लिस्ट जोन सा भी पॉइंट है, जोन से भी वर्ड्स हैं विद इन द लिस्ट दैट आर प्रेजेंट विद इन द लिस्ट, उनको जो है बोलना, उनको जो है सुनना, उनको रीड कर पाना इज़ मोर ईजियर दैन दोज वर्ड्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट. यानी कि सीक्वेंस में जो वर्ड्स होंगे उनको बोलना ज़्यादा ईजी हो सकता है फॉर द रीडर. एंड रीडर इंटेंशंस टू द कॉन्सेप्ट भी पर बात करें तो कॉन्सेप्ट पर क्या उसके रीडर्स के क्या इंटेंशन हैं उस पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया है. लेटर गुडमैन पॉजिटेड दैट रीडिंग वाज अ साइकोलिंग्विस्टिक गेम, गेसिंग गेम, यानी कि रीडिंग वाज अ साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम इन विच मीन्स द मीनिंग्स आर गेस्ड ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस. ओके, ही डिस्क्राइब्ड द थ्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड क्यू सिस्टम टू रिकंस्ट्रक्ट द टेक्स्ट मीनिंग दैट इंक्लूड द ग्राफोनिक cues, syntactic cues and semantic cues. Graph means visual and phonic means sound. It is related to the sound, so it is totally about the visual and sound
यानी कि विजुअल नॉलेज ऑफ विजन एंड द साउंड्स एंड सिंटैक्टिक क्यूज इज़ रिलेटेड टू सिंटैक्टिक कंस्ट्रेंट्स, सिमेंटिक क्यूज इज़ रिलेटेड टू द मीनिंग, यानी कि जो भी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है उसके ऊपर बात की जाती है कि सिमेंटिक क्यूज़ में कि मीनिंग क्या है ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड और द टेक्स्ट. ही सा द रीडर्स एज हैविंग द नेचुरल मोटिवेशन टू मेक सेंस, यानी कि उसने देखा कि देर इज़ समथिंग इन नेट एबिलिटी, दैट इज़ समथिंग, देर इज़ समथिंग प्रेजेंट इन द रीडर थ्रू विच ही जो है डिज़ाइन कर पाता है ऑफ द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. अब स्मिथ की बात कर ले तो स्मिथ ने इस अप्रोच को रीइंफोर्स किया था एंड ही लर्निंग टू रीड इज़ अ नेचुरल कॉम्प्रिहेंसिबल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस. एंड स्मिथ एंड गुडमैन इन दोनों ने एक ही बात की थी. स्मिथ एंड गुडमैन हाइपोथेसिस दैट पीपल learn to read by reading as confirmed by Krashen and his research free voluntary reading and reading ability. अब जोन सा जो है गुडमैन उसने एक पूरा पैरेलल लाइन है बिटवीन दी रीडिंग टू लर्न एंड लर्न टू रीड के दरमियान में, और स्मिथ ने इस बात को जो है कहा कि रीडिंग टू लर्न रीड इज़ अ नेचुरल कॉम्प्रिहेंसिबल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब है कि रीड टू लर्न इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ मोर you can say that reliable thing. Okay, so as a result of learner were taught to become active readers, यानी कि learners के लिए active reader होना बहुत ज़रूरी है. इसके थ्रू इस बात पर गौर किया गया था, यानी कि इनेटिस्ट अप्रोच में मैंने आपको बताया कि वो टोटली मेंटल प्रोसेसेस पर जो है रिलाई करती हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस दैट इज़ रिलेटेड टू द माइंड. बट now it is the interactionist view. Here is the brief history of the interactionist view. Later in the 1970s, researchers attempting to identify the comprehension skills. This was carried out by the disciplines of cognitive psychology and social linguistics. अब हम social linguistic and cognitive psychology पर जो है वन बाय वन बात करते हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर अगर बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द बेसिक प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द रीडिंग प्रोसेस. मेजर डेवलपमेंट वाज द स्टोरी ग्रामर. स्टोरी ग्रामर इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ द स्टोरी, जो कि और इस पैटर्न ऑफ द स्टोरी में जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी बात की जाए तो वो स्टीन और ग्लीन ने इंट्रोड्यूस करवाए, विच इंक्लूड द सेटिंग, इनिशिएटिंग इवेंट, इंटरनल रिस्पॉन्स, अटैम्प्ट, कॉन्सिक्वेंस एंड रिएक्शन, एंड दे टेंडेड टू इग्नोर नॉन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स ऑफ रीडिंग एक्ट टू स्कीमा थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड. यानी कि इनमें जो है नॉन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स की तो बात की नहीं गई, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स की तो बात कर ली गई, पर नॉन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आगे स्कीमा थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया. एंड स्कीमा थ्योरी इज अराइव्ड टू टैकल द रिलेशनशिप बिटवीन द बैकग्राउंड नॉलेज दैट रीडर्स ब्रिंग टू द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन. ह्यूमन हार्ट्स वर्ड्स की बात की जाए सो इट्स द थ्योरी अबाउट हाउ नॉलेज इज प्रेजेंटेड एंड हाउ दैट representation facilitates that knowledge. It's the theory about how knowledge is presented and how that representation facilitates that knowledge. Reading was an interactive process, relation between writer and the reader. Okay, reading को as an interactive process कहा गया because अगर हम इंटरेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं तो रीडर और राइटर का जो रिलेशन है उसके ऊपर भी बात की जाएगी. सो अंडर दी सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अगर बात करें सोशल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के अंदर तो इट इज़ कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. Prior to social linguistic context, reading meant the relationship between the graphic symbols that surrounded the word. यानी कि पहले ये समझा जाता था कि रीडिंग को the text is surrounded by the symbols and the words. So लेकिन ब्लूम एंड ग्रीन प्रपोज द रीडिंग एज अ सोशल प्रोसेस, और उन्होंने कहा ऑथर रीडर इंटरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अंडर सच एन अप्रोच एंड रीडर कंस्ट्रक्ट द मीनिंग विद इन द कल्चर. इसको सिंबल के ऊपर बात नहीं की गई. सिंबल दैट इज सराउंडिंग द टेक्स्ट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ द it is taught in such a way that reader construct the meaning within the culture. यानी कि words are roaming around the culture. Okay, so this social view was supported by the classic studies of हीथ एंड वेल्स. हीथ और वेल्स की अगर बात की जाए तो हीथ
डिपिक्टेड द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। उसने कहा कि फैमिली एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑन स्कूलिंग दे प्ले अ की रोल। एंड वेल्थ की बात की जाए तो उसने लिटरेसी को एज अ जनरल टॉपिक दिया गया, बट रीडिंग वाज पर्टिकुलर। रीडिंग उसने कहा कि अगर ऑब्जर्व किया जाए तो रीडिंग को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट इज़ मोर इनहेरेंट इन दी स्कूल्स। ओके, सो हेथ एंड वेल्थ की टू डिफरेंट जो हैं थ्योरीज पर बात कर ली गई। दिस पेडागोजिकल सिस्टम इज़ टू फोल्ड इन सच अ वे दैट टीचर शुड मूव टू दी सिंपल वोकेबलरी। सो दैट्स वाई हर बच्चे को पूरे वर्ड्स पर, पूरे फ्रेजेस पर, पूरे सेंटेंसेस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट टेक्स्ट इंटरप्रिटेशंस की शुड बी वेलकम वन बाय वन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जिससे वो अपग्रेड भी हो सकेंगे एट द सेम टाइम। अब हम इसका फ्रेमवर्क देख लेते हैं। फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इज द कोर कॉम्पिटेंस। इट मीन्स इफ द रीडर इज एबल टू अंडरस्टैंड द रिटन पीस ऑफ डिस्कोर्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दे एज वेल एज द रिलेट दैम टू पर्पसेस एंड कॉन्टेक्चुअल फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट। यानी कि कॉन्टेक्चुअल फीचर्स में उसको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। और ये डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में ये भी बात जो है देखी गई दैट how this competence is the core is related to the to that competence in such a way that मैंने आपको बताया कि cohesion and coherence पर बात की जाती है। so how the reader's context is attaching to each other, reader के mind में किस तरह हो रहा है, and क्या cultural context, cultural values हैं इसमें, क्या social values हैं, ठीक है, इस पर बात की जाती है। thus reader play an active role to develop overall communication ability, कम्युनिकेटिव एबिलिटी। सो हम बाकी नंबर 1 लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर बात करें। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज टोटली रिलेटेड विद दी स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दी लैंग्वेज। सो मास्टरी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जितने उसमें जौन सी डिवाइसेस हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, उनके ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। एंड दे आर द फंडामेंटल्स टू डिकोड द रिटन टेक्स्ट ऑल्सो। डेवलपमेंट ऑफ द वोकेबलरी हैज़ कंसीडर्ड एज द क्रिटिकल एरिया, यानी कि वोकेबलरी जितनी अच्छी उतना ही ज़्यादा आपका जो है सलाहियत ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ कंसीडर्ड बाय द एडरसन एंड फील्ड, क्योंकि उन्होंने कहा वोकेबलरी नॉलेज फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। एंड ग्रैब एंड विलियम्स की बात की जाए तो उन्होंने ऑटोमेटिक रिकग्निशन पर बात की थी कि ऑटोमेटिकली आप किस तरह से जो है वर्ड को या सेंटेंस को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं मीनिंग को। ओके, सो this one is the pragmatic competence. Pragmatic competence is essential to understand the text in the social contextual factors. It was missing when interpreting the communicative interaction intention of a given text, and therefore readers must rely on ग्राफिक, सिंटैक्टिक एंड लिंग्विस्टिक डिवाइसेस। ग्राफिक, सिंटैक्टिक एंड लिंग्विस्टिक डिवाइसेस यानी कि प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस में बात की जाए तो तीनों ये जौन सी डिवाइसेस हैं वो राइटर के मीनिंग को जो है कन्वे करने में की रोल जो है प्ले करती हैं। सो कर्न करेक्टराइज्ड द फॉलोइंग फीचर्स एज टाइपोग्राफिकल, सिंटैक्टिक इश्यूज एंड लेक्सिकल इश्यूज। टाइपोग्राफिकल इश्यूज में ये आता है कि कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, विच टाइप ऑफ स्टाइल इज़ यूज्ड, क्या वो न्यू टाइम रोमन है या फिर वो बोल्ड फेस लेटर्स हैं, इटैलिक्स कब यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर बात की जाती है। सिंटैक्टिक इश्यूज़ की बात की जाए तो इसमें जो है क्लेफ्ट, सी लेफ्ट जो हैं सिलेफ्ट, सिंटैक्टिक इश्यूज़ में मीनिंग पर बात की जाती है कि हाउ दे आर गिविंग द मीनिंग। लेक्सिकल इश्यूज़ की बात की जाए तो उसमें भी वर्ब एडवर्ब वगैरह की बात की जाती है, यानी कि जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस ये बात करते हैं, ये मीनिंग को हाफ जो है सपोर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग स्पीकिंग। सिमिलरली ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस राइटर थ्रू दीज ये उसके फेशियल जेस्टर्स और एक्सप्रेशंस को जो है सपोर्ट कर पाती हैं दीज 3 फीचर्स। ओके, सो नॉलेज ऑफ द क्लूज ऑफ इलोकेशनरी फोर्स, यानी कि इनका नॉलेज होना भी आपकी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर सकता है एंड राइटर के मीनिंग को कन्वे करने में भी की रोल प्ले करता है।
इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस की बात करें तो इट रेफर्स टू इंटरप्रेट द रिटन टेक्स्ट अप्रोप्रिएटली विद इन देयर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी। इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस में आपको पहले भी बताया कि सोशलाइजेशन इन कल्चर के ऊपर बात की जाती है, राइटर के लिए रीडर का एंड रीडर के लिए राइटर का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत जान लेना इज़ अ गुड थिंग। एंड विलियम पे अटेंशन टू सोशो पर्सपेक्टिव ऑन दी रीडिंग, विलियम ने इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। विलियम ने इसको जो है अंडर दी रीडिंग प्रोसेस इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस में जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, okay, so that's why it is totally related. Reading is more important in the socio-cultural competence. So this one is the strategic competence. Strategic competence is crucial to develop the reading skills. It refers to the possession of both communication and learning strategies. Number one, Grab said that it is the important area within the reading field. Field said that it is the metacognitive awareness about developed fluency. Edgar gives the detailed explanation of key reading strategies that the use of which result in improved comprehension. तीनों ने कुछ सेम बात की है। फील्ड ने मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस की बात की, ग्रैब ने जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया जो है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस को, स्ट्रेटजीज दैट आर इन्वॉल्व इन रीडिंग, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। एडिगर ने भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी ऑन दी की स्ट्रेटजीज टू यूज़ जो कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन को फैसिलिटेट कर पाएँ, ओके। सो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस वाज टोटली रिलेटेड टू दिस। सो हियर इट एंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, गिव देम अ थम्स अप एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, and like, share and subscribe to my channel, and bye bye.